حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتُ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جی جس نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت نا اپنے شاہی کمرے میں آرام کر رہے تھے، باہر پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ اندر بھائی بادشاہ سلامت سو رہے ہیں۔ وہ سوتے سوتے نا حضرت کو فیل ہوا کہ کوئی گزرا ہے، حضرت اٹھ بیٹھے، پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کے باہر پہرے دار کو بلایا، وہ آیا، فرمایا ڈیوٹی میں غفلت ہوئی آج؟ اس نے کہا نہیں حضرت، دیکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا بندہ گزرا ہے؟ کہ حضرت ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے چھت پہ اس کی آہٹ بھی محسوس کی۔ کہا حضرت ہو ہی نہیں سکتا، وہ راستے میں کوئی ایک پیرا ہے، کئی پیرے اس کو پار کرنے پڑیں گے وہ پھر آپ تک آئے گا۔ اچھا شاید وہ چلا گیا۔ حضرت ابھی لیٹے تھے نا، وہ جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر بھاگتا ہوا واپس آیا۔ حضرت بھی الرٹ تھے، آپ نے جلدی سے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمایا تو اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے۔ اب وہ آگے سے کہتا ہے حضرت اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے اتنا بتائیں کہ پلنگ کے اوپر رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ لیکن حضرت جی ہم میں سے پلنگ چھوڑے وہ نا جو رب کا تلاش کرنے والا ہو۔ حضرت پلنگ تو وہ چھوڑے حضرت جو جنت کا طلبگار ہو۔ ہم نے تو سارے سودے ادھر ہی پلاٹوں کے کر لیے ہوئے ہیں حضرت، جنت میں تو پلاٹ چاہیے کسی کو نہیں۔ تہجد کے لیے تو وہ اٹھے جس کو جنت میں پلاٹ چاہیے، ہمیں تو سارے پلاٹ ادھر ہی چاہیے۔ اتھے والے دی تو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرت، اللہ کہاں یہاں کا پلاٹ، کیا قربان جاؤں ادھر کے پلاٹوں پہ حضرت، کہاں ادھر کی کوٹھیاں، کہاں جنت کے محل حضرت، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت، کو ہے ہی نہیں چاہنے والا، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا نہیں دل کرتا حضرت شرابن طہورا پینے کو، کوئی نہیں جنت کے حوروں کا طلبگار۔ کیا گیا یار، سارے اتھے کر بیٹھے سودے، اللہ دیکھ بھی رہے ہو، میرا دادا چھوڑ گیا، میرا نانا چھوڑ گیا، میرا تایا چھوڑ گیا، میرا چاچا چھوڑ گیا، میری دادی چھوڑ کے چلی گئی، میری نانی چھوڑ کے چلی گئی، یہاں کئی احباب بیٹھے ہیں، امی چھوڑ کے چلی گئی، ابو چھوڑ کے بہت، تو کیا چپے لگا رہا نہیں ہے اس کو؟ اس کی تیاری کر جہاں جانا ہے، اس کی تیاری کر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کہا اگر حضرت اگر چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر اے بھی سن لو پلنگ تے کدی رب بھی نہیں جے لبا ہے، اٹھنا پڑتا ہے پھر۔ بس حضرت پھر وہ آخری چوٹ تھی جو حضرت کو لگی، پھر گدڑی پہنی حضرت اور پھر رب کی تلاش میں نکلے، اور وہی دور جو آپ کی بادشاہت کا دور۔ لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ آپ کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، وہ کانٹے اور وہ ڈوڈیاں، صرف پتیاں حضرت، اور نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا، یہ میرا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے حضرت، نیچے گدا، 100 کلو گلاب دیاں پتیاں، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر اس بستر پہ سونا حضرت۔ وہ لکھا ہے وہ جو لونڈی تھی نا جو روز پتیاں بچھانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھی، جس نے چیک کرنا کو کانٹا تو نہیں اندر، کو ڈوڈی تو نہیں، تاکہ حضرت کو سوتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہو حضرت، وہ روز بچھاتی تھی۔ ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ آج چیک تے کر بھلا کس طرح دا بستر ہے، نیچے گدا، 100 کلو گلاب کی پتیاں، بس لیٹی، نرمی، ٹھنڈک، آنکھ لگ گئی ہے۔ آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا، ہڑبڑا کے اٹھی ہے حضرت
हजरत की काबीना चिल्लात, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत। जल्लाद को कहा मार कोड़े और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। वो कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? और करती है हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर रोना ही था। नहीं फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी और रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई नहीं। फरमाया क्या ख्याल आया? क्योंकि ख्याल आया चल तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना, वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? जी ओ भाई जी हाथ जोड़ के जाए, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो मियां। ये 30 दिन में प्रैक्टिस करवाई गई है बंदिया, वेखला उठना औखा कोई नहीं हुआ है। या मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं रात पवे ते ओ बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजण दी पई सुत्या आण जगावे। अल्लाह वो खुद ही कह रहा है वजालना नौमकुम सुबाता, रात असी सोन ली बनाई है, लेकिन बस इन्ना टाइम सोना हूं उठ। ये कुशैरी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है, कोई बस जब मालक करम करे जी अखा खोल छड़े हैं। वो कोई थे तो उन्होंने ना वो लौंडी खरीदी है, जब रात आई ना तो आपने अपनी लौंडी से कहा बिस्तरा पा सोइए बस थक गए। वो आगे से पूछती है ऐ मेरे आका क्या तेरा भी को आका है? उसने कहा मेरा अल्लाह मेरा आका है, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। तो उसने कहा फिर ये बता तेरा मालिक सोता है? उसने कहा नहीं, सोना तो दूर, मेरे मालिक की तो शान ये है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसको तो कभी ऊंघ भी नहीं आई है। सोना तो दूर, मेरे मालिक की मेरे आका की तो ये शान है उसे कभी ऊंघ नहीं आई। तो वो लोंडी आगे से रो के कहती है ऐ मेरे आका फिर तू कैसा गुलाम है, तेरा मालिक जाग रहा है और तू सोने लगा है। हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं जी बड़े लोगों पे। अल्लाह वो खुद कुरान में कह रहा है वजालना नौमकुम, असी रात लेकिन फजर टाइम बंदे उठ खलो, बस एना ही टाइम सोऊंगा ऊन उठ। इसलिए हजरत मैं चलो फिर पूछ लेना, शायद कोई इंशाल्लाह जो बेहतरी आ गई हो। आप फजर की रूटीन खराब तो नहीं करेंगे? चलो शुक्र है या अल्लाह, आगे तो बोले ही नहीं कोई भी। मैं और को आख बैठा जांदे जांदे अपने मकान दी रजिस्ट्रियां मैनू दे जो सारे, तुसी तो मजाक नहीं किया मेरे नाल, वो बोले ही कोई नहीं अगू उधर है। फजर की रूटीन छोड़ेंगे तो नहीं। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते थे कि कोई ये अब मार्फत की बातें हैं, ये अब कहाँ मिलती हैं। कोई बंदा था तो वो किसी बुजुर्ग का मुरीद होने चला गया, हुजूर मुरीद कर लो। आपने फरमाया भाई गल है की चाहना है? उन्हें कि हुजूर अल्लाह दी यारी। फरमाया फिर चौधरी ते अल्लाह दी यारी कट्ठी नहीं टुरदी है, दस लै चौधरी बनने के रब दा यार बनने।
उन्हें कहा हजूर रब दा यार बनना। फरमाया जा फिर सारा कुछ ला के तो फकीरी चोगा पा गया लै हजरत जी। सारे चौधरी आदमी सी। आपने फरमाया बह जा। वो जी ना चूड़ी गंद संद चुकन वाली, आपने इशारा किया जरा जाते हैं थोड़ा सुट टैसट करिए कि भला किन्ना कुछ भावड़ बलदा। उन्हें जाने को सुटिया तो पै गया उठ के होए फरमाया तो काम बहुत ही खराब है। आपने अगले दिन बुला के फरमाया, आपने फरमाया अज तू अपने शहर जाना तो भीख मंग के ले आनी। शहर सी ओदा, हर बंदे ने चो साहब जनाब, वो जनाब राती अड्डी पंड भर के लै जा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अगले दिन हूँ नाल दे पिंड जाना, उतों भी वाह भी लै आ। अगले पिंड जाना, उतों भी कोई काम ठीक रहा, टोरते गए। वो फिर जू जू पिंडू दूर होंदा गया, लोग पछाणते नहीं सन, लोगों ने गालां कढ़नियां, ओ झोटिया अच्छा कर थोड़ी जी अंदर अंदर टुटना। तो बुजुर्गों ने फरमाया ही कि गुस्सा नहीं करना है। उर्दू की तू वाह भी दूरों मांग के आया, सारा दिन बेचारा गालां खा के आया, आके बैठा। आपने फिर चूड़ी नूं क्या फिर थोड़ा जहा सुट, हाँ भला की बने। उन्हें फिर सुटिया तो फिर उठ के पै गए। आपने फरमाया नहीं अजे भी नहीं मरया है, अजे भी नहीं मरया है कोई, क्योंकि हजरत जितनी देर ये नहीं मरेगा कुछ नहीं होना। हजरत मैं आपको सच कह रहा, जिस दिन इसको मार लोगे हजरत उसी दिन फिर सारे रंग तुम्हारे हैं। हजरत वो जो फिर अफनान सा पढ़ते हैं ना, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने जो जिधर देखा सरकार नजर आए। मारो हजरत इसको, जिस दिन तुमने इसको मार लिया ना ये रंग बना तो हाथ आपका होगा, गिरेबान मिसबाई का होगा। वो कहते हैं कदी साडे लिए मार के ते वे, कदी साडे लिए मार के ते वे, वेखो ना डंडा खाया ना, उसी था हुजूर का दीदार नसीब हो गया। कोशिश करता हूं कि बात को जितना इधर उधर कर सकूं ताकि बात का मतन खत्म ना हो, बात का मतन मौजूद रहे, लेकिन चलो कुछ हो जाए मामला। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर। मैं एक दफ़ा प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग इधर, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफिल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत जी। तो सुप्रीम कोर्ट या जज ने सजाए मौत सुना दी। अब कुछ नहीं था। मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे, चौधरी साहब हूँ इधर वाला जोर तो ला बैठे, हूँ इधर वाला लाओ जरा, हूँ इधर वाला जोर लाओ है। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, उन्होंने कहा जाओ कोई दुआ लभो कि तुझे लभ जाए। थे कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे, कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल्ला साहब का बता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था, तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी किमें आए हो। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई, तो जे प्यो दे हुंदे पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जींदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जे कर लोगे तो फिर असी भी लिख के दिन्ने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ हजरत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए, वो जात शानों वाली जात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जे कर जाओगे तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर काम की है। फरमान लगे चौधरी साहब रोज मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुतियां का मुंह बाहर मुँह कर देना, तो फिर फरज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने थाना जुतियां पवानियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है जी। जो सब कहते हैं मैं सिर सुट लिया यार, किन्ने पिंडा च मेरी कोह बोल दी, मैं जुतियां पवावा लोगों को, कहते ना तो बेहतर फांसी लग जाए उन्होंने, यह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया। कहते मैंने फिर अर्ज की हुजूर मुंडा छुट जाएगा,
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा तेरे। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमा लगे हकीम साहब ने फिर रोकया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जनाब मैं अपने उधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी, मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब ने, मुंह ना मैंने छुपा लेना। फिर मैं अंदर वाला मर्द आ गया, मर्द आ गया, मर्द आ गया, मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी अदरे, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह कहते मैं कुल्लू वाला आया हुआ था, गाड़ी कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चलते, कहते मैं कुल्लू वाला आया हुआ था, कहते मैंने जोर की नमाज पढ़ी, आके जूतियां सीधी की और बैठ गया। जो बंदा सबसे पहले आए मैं उसको जूती पहना हूं। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ ली और मैं उसको, क्योंकि मैं नीचे था, मैं रो रहा था। कहते वो मुझे बंदा कहता बुजुर्ग हजरत साहब मैनू अल्लाह ने 2 ही हथ दिते थे, मैं पा लांगा अपनी जुत्ती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथों पा लै, हो सकता मेरे गुनाह माफ हो जाए, हो सकता मैनू माफी मिल जाए, हथ तो तेरे भी है, रोज अपने हथा ना पाना, मेरे ना भी पा ला, हो सकता मैनू माफी मिल जाए, मेरे रब नूं मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते हैं वो बंदा आगे से कहता कौन तुसी जी, उत्ते तो देखो जरा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूं कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस हाल में चौधरी आदमी है जी ते इत्थे आ गया कि हुण मसीतां च लोकां नूं जुत्तियां पाउंदा फिरदा है, इत्थे आ गया। वो कहता मुझसे मैंने पूछा चौधरी जी है की, उन्होंने कहा भाई तेरे नाल कोई गल नहीं, दूर होया मेरे मुंडे को, असीं तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे नाल कोई गल नहीं है, तू जिथे है मैं तू ठीक है। मैं तो अपने रब को माफी मंगन निकले, क्योंकि वो दस्ते कुदरत च दिल ने, हो सकता है उत्ते माफी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे नाल कोई गल नहीं, बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ कर छड़े। फरमाने वो अगू मैनू कहन लगा चौधरी जी माफ करना की, माफ कर छड़िया, उठो आओ सवेरे मैं भी माफ किया, तुहाडा मुंडा बरी करवा देना, मारना पड़ेगा नजर ते, औखा काम है दरे, लेकिन याद रखना दरे महबूब तक आने के लिए डंडे तो। मैं वही गल करांगा जी हकीम साहब करते हैं, या अल्लाह तू डंडे ना ही मारी, इंजी करम कर छा, पहले ही तूने आए करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों, या अल्लाह हुण पग्गां पवा छड़ियां नहीं है, हुण माफी दे छड़ियां, असी नहीं डंडियां जो भी हुण कोई वो जिहड़े वड्डियां ने खाधे ने, या अल्लाह उन्होंने डंडियां दे तू बगैर डंडियां तू रहम कर छड़ी, सी नहीं डंडियां जो वो इब्राहिम बिन अदहम दा सबर, ओ बायजीद बुस्तामी दा सबर, या अल्लाह हजरत जुनैद बगदादी दा अखलाक, या अल्लाह असी इन्ने जोगे कोई नहीं, सानू तू जी माफ कर छड़ या है। लेकिन पुत्र मारो अपना आप है, अपनिया भैणां नाल अपने भरावां नाल आले दुआले अच्छा रवैया है। स्पेशल जड़े पुत्र पग्गां वाले हैं, ऐसी दाढ़ियां, वो जीत जाता है हजरत जो 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 हार गया हजरत, वही जीतता है जो हार गया हजरत जी, जिसको हारना नहीं आता वो कभी नहीं जीत सकता हजरत, वही जीतेगा जो हारेगा भी हजरत, जो हार नहीं सकता वो कभी नहीं जीतेगा हजरत, कभी नहीं जीतेगा हजरत। ये शौक से मैं पढ़ता हूँ, अक्सर आज भी मेरे पास किताबें मौजूद है। मैंने पढ़ा कि एक दिन हलाकू था या चंगेज था, दोनों में से एक जरूर था कोई ना कोई। ये बाजार में सैर करने के लिए गए, तो जब बाजार में दाखिल हुआ ना तो बाजार एक लंबी गली नुमा था। उसने सिपाहियों को कहा उधर से भी बंद कर दो, कोई जाने ना पाए कोई आने ना पाए, इधर से भी बंद कर दो, कोई जाने ना पाए कोई आने ना पाए। हाँ जितने बाजार में हाँ गाहक हैं, हाँ दुकानदार हैं, हाँ जवान हैं, हाँ बूढ़े हैं, हाँ बच्चियां हैं, सबकी गर्दनें उतार दो लाइन में खड़ी करके। अब वो मोर्रिख लिखता है कि जब लाइनें लगाई गई ना तो 3 लाइनें लगी। हाँ तो पहली लाइन के इस एंड पे ना एक बाबा जी खड़े थे। अब वो हलाकू या चंगेज खड़ा देख रहा है, वो एक एक करके सार उतर रहे हैं सबके। जब बाबा जी की बारी आने लगी ना तो बाबा जी पहली लाइन से दूसरी लाइन में चले गए। अब तारीख लिखती है कि वो देख के ना मुस्कुराया, उसने तमस्खर उड़ाया, हाँ बाबा किन्ना कना सलेंगा। वो दूसरी लाइन में जब उसकी बारी आने लगी, बाबा दूसरी से तीसरी में चला गया, वो फिर मुस्कुराया। वो तारीख लिखती है कि जब सबकी गर्दन उतर गई ना, उसकी बारी आई ना,
تو جب جلاد اس کی گردن اتارنے لگا تو ہلاکو نے چنگیز نے اس کو کہا نہیں، اس کو پہلے میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ آیا تو اس سے پوچھتا ہے جب تو پہلی لائن سے دوسری لائن میں گیا نا تو میں مسکرایا تھا کہ اچھا بابا کنہ کا نس لیں گا، تو دوسری سے تیسری میں چلا گیا، میں پھر مسکرایا تھا اچھا بابا کہاں تک بھاگے گا، اب بتا کیا کرے گا، اب بتا کون بچائے گا تجھے؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس بابے کی زبان سے نکلا اب مجھے بچائے گا اللہ، اب مجھے بچائے گا اللہ۔ تو اس وقت لکھا ہے کہ وہ پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں نا لیمو تھا، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے نا لیمو ایسے وہ ایسے ایسے کر رہا تھا۔ جب اس نے بابے سے پوچھا نا اب تجھے کون بچائے گا، تو اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا پھر دیکھتا ہوں تیرا اللہ اب تجھے کس طرح بچاتا ہے۔ جلاد کو کہا اس کی گردن اتارو، وہ گردن اتارنے کے لیے لے گیا تو لکھا ہے وہ تیش آیا نا، تھوڑا مزاج میں غصہ آیا تو کیا وہ آیا لیمو ذرا زور سے پھینک بیٹھا، اس طرح نہیں آیا، وہ تھوڑا آگے گرا، جب وہ لیمو کو کیش کرنے کے لیے جھکا نا تو ادھر گھوڑا بھی حرکت میں آ گیا، وہ گھوڑے سے گر گیا، اب پاؤں اٹکا ہوا تھا رکاب میں، اب وہ گھوڑا بھاگ رہا آگے جا کے وہ چٹان سے ٹکرایا اور وہ گر کے وہیں مر گیا۔ وہ بابے کو چھوڑ کے سارے سپاہی بھی اس طرف لگ گئے، تو پھر تاریخ کہتی ہے جس کو مارنے لگا تھا وہ وہیں